Okay, so we will start. Hope you don't find any problem to join this lecture. ठीक है, जब भी आपका ये ऐसे एक ही क्लास का लेक्चर रहता है तो आपको जो जैसे आप बाकी लेक्चर एज यूजुअल ज्वाइन करते हैं वैसे करना और otherwise I will share the link. Okay, so in the last lecture we completed basic concepts of OOP, all those 8 concepts. And I want you to learn all those concepts. You must be able to recall all at once. Okay, आपको उनको इतना अच्छे से समझना है कि अगर आपको एग्जाम्पल पूछा जाए रियल वर्ल्ड का बोले या फिर टेक्निकल, तो यू मस्ट बी रेडी विद बोथ दोज एग्जाम्पल्स. Yes, inheritance concept अगर आपको समझाना है so you must be ready with the example, the standard example of word. You must be ready with the example of parent and child, so that अगर आपके पास ये दोनों एग्जाम्पल हो गए तो आप क्या करो उसमें उसको यू विल बी एबल टू रिकॉल इट इजीली. ओके, so anytime, you should be able to explain those all the concepts, 8 concepts. और आपको मैं चाहूंगी कि आपको बाय हार्ट कर लें. ठीक है, बिकॉज इस बुक का अगर बेसिक कुछ है जो मेन चीज अगर इस हम बुक में से बोले आपके पूरे कोर्स में से, तो दैट इज दोज 8 only, and based on that the remaining thing. अब आपने मेन चीज पढ़ ली है, अब पूरी बुक में आपको क्या पढ़ना है? इम्प्लीमेंटेशन. How those things are implemented, how the programs are written, how those things are used, and how those advantages are achieved, okay, over the pop languages. तो वो आपको differences इसमें study करने हैं. So as in the last lecture, we started with C++ programming because once we have completed the OP concept, we were going to learn the 2 languages in this course, C++ and Java. So first we started with the C++, okay, which uses object-oriented programming approach. Now this is the developer of C++ language. His name is Rostra. He developed the language in around 1980s. He named the language firstly C with classes. उसके बाद इसका नाम 1987 में C++ हुआ because it is advancement to the C. So he wanted to develop a strong, powerful language which will have the important features from C also, and some additional features along with that to make it more powerful. So that was a C++. Okay, so incremented version of C आप बोल C++ को बोल सकते हैं. One more thing I want to tell you that C++ is a superset of C. Okay, so almost all the features of C, they can be used in C++, applicable in C++, and almost all the C programs can run in C++. अगर आप सी का एक सिंपल प्रोग्राम भी सी प्लस प्लस के कंपाइलर में लिखते हो, उसको डॉट सी से आप सेव करते हो, तो सी प्लस प्लस कंपाइलर इज एबल टू रन दैट प्रोग्राम. ओके, बिकॉज सी प्लस प्लस इज अ सुपर सेट ऑफ सी. तो सुपर सेट होना मतलब उसमें दिखे हुए आप अगर उसके सबसेट के कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो वो उसमें रन होंगे. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. ओके, बट बिसाइड दैट ऑल द प्रोग्राम्स इन सी कैन रन इन सी प्लस प्लस. ओके, and C++ how it differentiates from C, you know this, that these are some additional features added to C++ classes, inheritance, polymorphism. ये उसमें से कुछ बहुत एडवांस्ड चीजें हैं जो C में नहीं थी और C++ में ऐड हुई. ठीक है, and C++ allows programmers with bottom up approach. जैसे C में आपने देखा it is a top down. अब ये जो top down का approach है ये आपको पता है because you have performed the C programs, you have executed C programs. And how do you write it? From the very start you write the hash include header files, you write the function, then second function, third function. And how the program sequence goes, जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है रन होने के लिए तो इट गोज फ्रॉम द टॉप, then next, and in the downward. So from top, starting from the top, you go towards down to execute your program. लेकिन C++ में ऐसा नहीं होता, and that you will understand when you will actually run the program. जब आप इसमें इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, because the best way to learn any language is to start with a program of that language. तो आप हम बहुत ही जल्द इसका प्रोग्राम ही देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा कि कैसे बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से ऊपर आपको इसमें जाना है. इसमें जो प्रोग्राम रन होते हैं दे स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन विच इज रिटन एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम.
ओके, सबसे एंड में मेन फंक्शन लिखा जाता है और मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, इसलिए इसको बॉटम अप बोलते हैं। ठीक है, तो बॉटम अप अप्रोच इसमें फॉलो होता है एंड दिस सी प्लस प्लस इज ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड यस इट प्रोवाइड्स यू विद द फीचर्स लाइक एक्सटेंसिबिलिटी with the use of inheritance. Now let's move towards the C++ program components. These are the components, the comments, IOStream file, namespace, main function, output operator, input operator. तो ये प्रोग्राम मैंने आपको लास्ट टाइम लिखने के लिए बोला था। आई होप सबने अपनी अपनी कॉपी लेके बैठे हैं सब लोग। अगर नहीं लिए है तो अभी भी आप पेन पेपर कुछ तो लेके बैठ जाइए, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू राइट दिस प्रोग्राम। अगर जिन्होंने नहीं लिखा होगा या जो सैटरडे के लेक्चर में एबसेंट थे, प्लीज राइट डाउन दिस प्रोग्राम। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम। जो फर्स्ट प्रोग्राम होता है बेसिकली किसी भी लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा, सो दैट इज अ सिंपल प्रोग्राम टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन। सो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा ये प्रोग्राम आउटपुट में। हियर यू आर एबल टू सी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम आई हैव रिटन इन दिस बॉक्स। और ये जो है ये आपका यहाँ से यहाँ तक प्रोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ जो हमने मार्क किया है कि हर एक स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, ये एरो से मार्क किया हुआ दिख रहा है आपको, राइट? सो what does this statement mean? That is written here, that this is known as comment line. तो ये जो हर चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 to 6 statements. Okay, so these are explained in the later slides. Okay, so we will see each one of them in detail. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने वाला है। इस प्रोग्राम में कमेंट लाइन लिखी गई है। सो आई विल जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन दिस प्रोग्राम वेरी क्विकली। माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस कमेंट लाइन। कमेंट लाइन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि मुझे कोई भी जो मेरा प्रोग्राम पढ़ेगा उसको इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये मेरा पहला प्रोग्राम है, मुझे ये मेरा कोड नहीं है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। उसके बाद मैंने लिखा है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ये मेरी हेडर फाइल है क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट के जो ऑब्जेक्ट्स यूज करने वाली हूँ, प्रिंटिंग स्टेटमेंट या फिर इनपुटिंग स्टेटमेंट, उसके लिए मुझे ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। एंड यू are familiar with the header files because in C languages you have used stdio.h. So similarly in C++ we use iostream using namespace std. This is something new feature that was not in C but in C++. ये एक नेम स्पेस है जिसका नाम स्टैंडर्ड है, इन शॉर्ट std. उसके बाद मैंने मेन फंक्शन लिखा है। इस प्रोग्राम में एक ही फंक्शन आप लोग देख सकते हैं जो कि मेन फंक्शन है। इसका रिटर्न टाइप इंट है। int, this is the return type which we write in front of the function name. Someone has unmuted his mic. Please अपना mic ये करो। Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. तो आप लोग बीच में ऐसे माइक आपका ये कर दीजिए अनम्यूट अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो, बिकॉज आई कांट गो एंड चेक एवरी टाइम द चैट बॉक्स। Then this is, you can see only one function I have written in this program, int name. This is the return type. This is the name of function. Opening and closing brackets symbolize that this is a function name. Opening curly brace, ending closing brace. The code will appear in between. Cout statement. This is known as the output statement in the C++ program. Here I have written the content that I want to print on the screen. Hello world exclamatory mark. यहाँ तक प्रिंट करना है exclamatory mark तक, इसलिए पूरा डबल कोट्स में दिया है। Semicolon, because every statement in C++ program inside the main function will end with semicolon. Return 0 and then close the bracket. And what I'm going to do is हम जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे मे बी वर्चुअल लैब्स में, तो वहां पे आपको बताऊंगी ही कि कैसे आपकी प्रोसीजर होगी प्रोग्राम को लिखने की। बिकॉज इन एडिटर यू विल टाइप द प्रोग्राम, यू विल सेव दिस प्रोग्राम विद .c++, जैसे आप सी में प्रोग्राम सेव करते थे .c। तो अगर मेरा ये पहला प्रोग्राम है तो मैं इसको सेव करूंगी first.c+cpp, first.cpp. Okay, I can name this program as
first.cpp, ये आएगा इसका नाम। ऐसे आप उसमें भी सेव करेंगे। जो कंपाइलर हमने यूज किया, जैसे आपने जीसीसी कंपाइलर यूज किया होगा, राइट? इसमें आपको जी प्लस प्लस कंपाइलर यूज करना है और जी प्लस प्लस कंपाइलर में प्रोग्राम रन करना है /a.out कमांड से, एंड देन यू विल सी दिस आउटपुट हेलो वर्ल्ड ऑन योर स्क्रीन। ये आउटपुट आपको मिलेगा आउटपुट स्क्रीन पे। सो ये जस्ट एक प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन हुआ। नाउ वी विल सी इन डिटेल व्हाट आर दिस कंपोनेंट्स। ओके, आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस प्रोग्राम, बिकॉज हम जब नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो आपको सिर्फ इसमें से एक लाइन दिखेंगी, इसलिए आई वांट यू टू राइट दिस कंप्लीट प्रोग्राम एंड कीप इट विथ यू। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट। उसमें ये था एलिमेंट दैट वाज कमेंट। ओके, सो इन द अपर प्रोग्राम, ये जो लाइन है आपको दिख रही है रेड में, माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस, इस पूरी लाइन को हम बोलेंगे कमेंट। अब कमेंट क्या होती है? कमेंट यानी कि वो पोर्शन होता है जो एग्जीक्यूट नहीं होता, इट इज नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड इन द प्रोग्राम। और कमेंट क्यों लिखे जाते हैं? जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पार्ट। मतलब अगर किसी प्रोग्रामर, आपने पहली बार कोई प्रोग्राम आप देख रहे हो, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड और ट्राइंग टू लर्न दैट प्रोग्राम, ओके, तो जब आप रीड कर रहे हो टू अंडरस्टैंड द मीन, जैसे एडिशन का प्रोग्राम है, सो यू कैन ऐड इन द कमेंट लाइन दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स एंड टू जनरेट देयर एवरेज। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोग्राम है तो आप लिखोगे कमेंट लाइन में दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम। So comments are not necessary, but they are written. It is a standard practice that developers use to give information about the program to the reader. So here you can see the comments in C++ can be written in two ways. Either you can write single line comments or multi-line comments. इसमें से मुझे लगता है आप familiar हो इस वाली comments के साथ, right? So see, single line comments are written like double slash. Okay, this is the double slash. Slash है forward slash. Okay, so double slash my first program in C++. तो आप double slash के बाद कुछ भी लिखो, it is considered as comment and there is no ending symbol. यहाँ कोई full stop नहीं है, semicolon नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको start करना है with this और फिर उसके बाद आपको जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी है प्रोग्राम की वो लिखो और that is your information about the program. It is not going to shown in the execute after the running your program. And this is the multi-line comment. Yes, you can add single line plus you can add multi-line comments also. तो multi-line comment मतलब अगर आपका बहुत बड़ा statement है, maybe one paragraph, so what, how can you can do that? So slash star, then write down the complete statement and then star slash. Okay, you will start with slash star, end with star slash. ठीक है, तो स्लैश स्टार अपोजिट ऑफ दिस स्टार स्लैश, ऐसा आपको एंड करना है और इसके बीच में आपको जो भी पोर्शन लिखना है, इंफॉर्मेशन देनी है आपके प्रोग्राम के बारे में, वो आप लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यू कैन प्लीज टेक डाउन द नोट्स। ओके, प्रोग्राम आपने लिखा ही है, आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये एडिशनल ये है चीजें, तो आपको लिख लेनी है अपनी कॉपी में। So this is the comment. Okay, my first program is C++. So I completed the first element in our program. Let's move on. The next line in your program is hash include iostream. Now what is this? This is known as header file. You are familiar with the stdio.h type of header files. What is the use of header file? Header file includes the declarations for the identifier. अब आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर मतलब कि जैसे इस प्रोग्राम में सी आउट, दिस इज एन आइडेंटिफायर। ओके, सी आउट इज एन आइडेंटिफायर, मेन इज एन आइडेंटिफायर, मतलब फंक्शन नेम या फिर योर ऑब्जेक्ट नेम। तो ये जो होते हैं ना, ये आइडेंटिफायर होते हैं, बट दिस आर बिल्ट इन आइडेंटिफायर क्योंकि ये उस लाइब्रेरी में इंक्लूड किए गए हैं। तो हेडर फाइल इसलिए यूज होती है क्योंकि उसमें सी आउट, सी इन जैसे जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स है उनके आइडेंटिफायर के डिक्लेरेशंस वहां पे सेव्ड है। तो जैसे ये हैश एनकाउंटर होता है ना कंपाइलर को,
तो ये बताता है कि ये जो फाइल सामने लिखी गई है हेडर, इसको इंपोर्ट करो प्रोग्राम में। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, अगर आप प्रोग्राम में इसको इंपोर्ट कर लोगे तो कंपाइलर को सी आउट और सी इन जैसे ऑब्जेक्ट का मीनिंग पता होगा। अगर आप इसको इंपोर्ट नहीं करोगे तो सी आउट के लिए आपको एरर आएगा कि दिस इज अननोन, अननोन वेरिएबल, अननोन आइडेंटिफायर। लेकिन अगर आप इस फाइल को इंपोर्ट करते हो तो इट इज लाइक you are known with the things. Okay, just like when you go for the exam, you keep everything, the formulas in your mind. Okay, so that is like a directory you are keeping in your mind, the formula directory. And when some calculation comes in front of you, you just apply it. So it is not like that something you don't know appear in front of you. आपको वो चीजें पता रहेगी क्योंकि आपके ब्रेन में वो स्टोर्ड है। सिमिलरली हम कंपाइलर को भी यही चीज बोलते हैं कि ये हेडर फाइल पहले इंपोर्ट कर लो, so that you will understand the things or the identifiers used in the program. तो सी आउट सीन जैसे जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स है, ऑब्जेक्ट के नेम्स है, उनके डिक्लेरेशन इस हेडर फाइल में होते हैं। इसलिए ये जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल है, इसको हमने हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड किया। इसका मीनिंग ये है कि मैं अपने प्रोग्राम में कहीं तो प्रिंटिंग या इनपुटिंग जैसे स्टेटमेंट्स यूज करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। अब ये एक ही हेडर फाइल है क्या पूरे C++ लैंग्वेज की? नहीं, ऐसी बहुत सी हेडर फाइल्स है, बट डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर यू हैव टू चूज द एप्रोप्रिएट हेडर फाइल एंड इंपोर्ट इट। तो ऐसी एक ही फाइल नहीं है, ये तो स्टैंडर्ड है जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करती है, और ये ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम में आपको इंपोर्ट करनी ही पड़ेगी क्योंकि आपके सभी C++ प्रोग्राम्स में इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इंक्लूडेड ही रहेंगे। समथिंग यू विल इनपुट फ्रॉम यूजर और कुछ ना कुछ आउटपुट आप डिस्प्ले करेंगे। तो ये तो जो आईओस्ट्रीम हेडर फाइल है ये कंपल्सरीली सभी प्रोग्राम्स में आएंगी ही। लेकिन इसके अलावा भी और भी हेडर फाइल्स है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोग्राम में कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू इंपोर्ट दैट फाइल। नाउ सी, this is some of the standard C++ library header files. You can see here the table. You don't have to worry about the number of files you are seeing on your screen, but I want you to know at least the names that they do exist. There are some header files like this. So here you can see the standard that one we have seen IOStream header file, which contains the functions prototype for C++ standard input output functions, IO menu, that manipulators, जो आप आगे पढ़ेंगे what is manipulators, okay, endl and all, then cmath, cstdlib, ctime, cctype, cstring, cstudio, fstream, limits, assert, float, string. These are some new header files included in ANSI C++. ANSI C++ means देखो जो पहले C++ का वर्जन आया था सॉरी, उसमें लिखा जाता था iostream.h, means it was यहाँ पे ये चीज होती थी, राइट, ये आपको पता होगी थी .h. So this was before standardizing the C++. तो जो स्टैंडर्डाइज और एडवांस वर्जन है दैट इज नोन एज ANSI C++, ANSI C++, ओके। तो उसमें क्या होता है, ये .h एक्सटेंशन नहीं आते। तो आपका जो अभी G++ कंपाइलर है दैट यूजेस ANSI C++, so you are not going to give the extension as .h। जैसे string.h है, math.h है, तो आप सब में .h नहीं लिखोगे, you just going to write iostream,
जैसे आपने सी प्रोग्राम में क्या लिखा था, सी प्रोग्राम में आपने लिखा होगा stdio.h, है ना, ये फैमिलियर है आपके लिए स्टेटमेंट, हैश इंक्लूड stdio.h। लेकिन इसमें आप क्या लिखेंगे, ये उसकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल थी, कौन सी लैंग्वेज के लिए, सी लैंग्वेज के लिए। लेकिन इसमें आपको क्या लिखना है, सिंपली ro stream, लुक एट द स्पेलिंग, IOSTREAM, so input output, the long form is input output stream. Okay, so simply no dot extensions are there. So here the number of files are given and their uses, what do they contain, those things are also given. Okay, so we are not going to go in detail because we are not going to use all of them. ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें से string और मैथ की लाइब्रेरी यूज करेंगे। आपके इसमें जो सिलेबस में प्रोग्राम दिए हैं कोर्स में, जहां तक दिए हैं उसमें यही कुछ यूज हुए हैं, ठीक है, मैथ और स्ट्रिंग एंड आई स्ट्रिंग ऑफ कोर्स। द नेक्स्ट स्टेटमेंट, आपका प्रोग्राम चेक करें, आपका प्रोग्राम लिखा है ना, उसमें थर्ड स्टेटमेंट क्या है, यूजिंग नेम स्पेस std, यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, इसमें से यूजिंग और नेम स्पेस, दिस टू आर कीवर्ड्स, std इज द नेम ऑफ द नेम स्पेस। तो std का लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे एक्चुअली स्टैंडर्ड, और ये यूजिंग नेम स्पेस जो आप लिख रहे हैं, ये दो कीवर्ड है, दिस आर डायरेक्टिव। डायरेक्टिव यानी जो कंपाइलर को इंडिकेट करते हैं कि इस नेम स्पेस को इंपोर्ट करो प्रोग्राम में बिफोर स्टार्टिंग गोइंग टुवर्ड्स द मेन फंक्शन। तो जैसे ये लाइन एनकाउंटर होगी, आपका कंपाइलर क्या करेगा, std नाम की नेम स्पेस को इंपोर्ट करेगा। अब ये नेम स्पेस क्यों जरूरी है, तो इस नेम स्पेस में वो जो आपको बोले मैंने अभी सी आउट और सी इन जैसे आइडेंटिफायर, उनकी डेफिनेशंस है। सी आउट क्या करेगा, जब भी कभी सी आउट एनकाउंटर होगा प्रोग्राम में, सो व्हाट डज इट मीन, तो ये कंपाइलर को समझाने के लिए उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और ये डेफिनेशन लिखी है इस नेम स्पेस में। सो रिमेंबर, हेडर फाइल्स इंक्लूड द डिक्लेरेशन पार्ट, नेम स्पेस इंक्लूड द डेफिनेशन पार्ट। डिक्लेरेशन यानी सिर्फ बताना कि मैं यूज कर रही हूँ, और डेफिनेशन यानी मैं क्या करूंगी, तो एक्चुअल उसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो इसमें है। सी आउट आने के बाद क्या करेगा, हेडर फाइल ने सिर्फ पहचान दिया किसी के सी आउट है, पता है सी आउट आउटपुट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आउटपुट स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, लेकिन नेम स्पेस बताएंगे कि सी आउट करेगा क्या। ओके, सो एक्चुअल फंक्शन जो रन होगा दैट विल बी हियर इन दिस नेम स्पेस। सो यू मस्ट have to include this namespace in every C++ program. अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखते, आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। If you miss this statement, okay, remember this ends with the semicolon. If you miss this statement using namespace std, or if you forgot to write this statement in your program is definitely going to give you error for C out and C in. वो बोलेगा I don't know what to do with C out and C in. Okay, so undefined objects या undefined identifiers करके आपको वहां पे एरर आएगा। तो नेम स्पेस क्यों इंक्लूड करना जरूरी है, because it defines the scope or definition for the identifiers used in the program. Okay, so all the standard C++ library elements are here in the namespace whose name is std, and to access its functionality we must declare this expression. तो इससे क्या होगा, वो सारे आपने जो आइडेंटिफायर्स डिफाइन किए हैं नेम स्पेस में, वो अभी के स्कोप में आ जाएंगे, प्रोग्राम के ग्लोबल स्कोप में। प्रोग्राम का ग्लोबल स्कोप में स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम से लेकर एंड जब तक नहीं होता प्रोग्राम तब तक। ओके, सो दैट इज द ग्लोबल, ओवरऑल थ्रू आउट द प्रोग्राम। So that will be provided with the namespace, and they can be accessed in all the
lifetime of the program, lifetime of your program. So this is the namespace. क्या नाम है इस नेमस्पेस का? std. ऐसी एक ही नेमस्पेस है क्या? नहीं, ऐसी बहुत सी अलग अलग नेम स्पेसेस है C++ की लाइब्रेरी में, बट जो हम यूज करेंगे std स्टैंडर्ड, okay, it includes most of the identifiers, declaration and definition. So you must include this namespace. ओके, सी आउट और सी इन जो मैंने आपको बोले उनकी तो इसी में है डेफिनेशन. सो ये आपको लाइन लिखनी ही है अपने प्रोग्राम में आफ्टर द हेडर फाइल स्टेटमेंट एंड बिफोर स्टार्टिंग योर मेन फंक्शन प्रोग्राम. जैसे कि आपने देखा आपके प्रोग्राम में सिर्फ एक ही फंक्शन है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ फंक्शन नहीं दिख रहे हैं या फिर आपको कोई क्लास नहीं दिख रही है, क्योंकि ये बहुत बेसिक प्रोग्राम है C++ का विदाउट क्लास वाला. ठीक है, इसमें हमने एक ही फंक्शन लिखा है मेन फंक्शन, जो प्रिंटिंग के लिए हमने उसमें कोड ऐड कर दिया, एक हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट हम प्रिंट कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द मेन फंक्शन, दैट इज सी. बिकॉज मेन फंक्शन के बारे में आप लोगों को पता है, बिकॉज यू हैव लर्न इन सी. मेन फंक्शन प्रोग्राम का वो फंक्शन होता है जहां से एक्चुअल में एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है. मेन फंक्शन हर C++ प्रोग्राम में लिखा जाता है. यू हैव टू राइट द मेन फंक्शन, ओके, बिकॉज इट इज द point where your program execution starts. Okay. C++ में main function integer type की value return करता है to the operating system. So by default, the return type of the main function is integer in C++. Remember this thing. जैसे आपने C के प्रोग्राम में लिखा होगा void main. C के प्रोग्राम में आप लोग क्या लिखते थे? void main and then write the coding line. Okay. I should not give the semicolon in Changi, because we never give the semicolon before the function name. So, main function returns integer type value to the operating system in C++, and hence you have to mention the return type as integer. ये जो लिखते हैं ना हम फंक्शन के सामने, ये क्या होता है? इंटीजर होता है. जैसे आप अगर दो फ्लोट नंबर की एडिशन कर रहे हो तो आपके एडिशन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या आएगा? फ्लोट. फ्लोट एडिशन, इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो भी एडिशन परफॉर्म करेगा उसका आउटपुट फ्लोट में आ रहा है. सो इट विल रिटर्न द फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यू. होप यू आर फैमिलियर विद द रिटर्न टाइप्स ऑफ फंक्शन. ओके, because I have already told you before learning this course, it is assumed that the programmer or the learner is familiar with C programming. तो C में आपने ये चीजें पढ़ी है, how to write function और फिर the return type of a function. तो ये जो सामने हम लिखते हैं ना, ये जो लिखी जाते हैं यहाँ पे, this is return type int. ये क्या है? name of the function. ये क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट. ये दिख रहा है कि आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट है, ये ऐसा है वो, बोले इसमें स्पेस नहीं दिख रही हो आपको. इट इज नॉट जीरो. हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं कि जो ये सिंबल भी ठीक से ड्रॉ नहीं करते, नहीं तो बोलोगे आपकी ये दिस इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट. लेट मी नॉट raise, I will see. This is like this. देखो यहाँ पे मेन फंक्शन, इसका बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप इंट ही रहेगा. ठीक है, और क्योंकि इसका रिटर्न टाइप इंट है इसलिए सबसे लास्ट में प्रोग्राम के आप देख सकते हैं एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है, रिटर्न 0. either you can write it like return in bracket 0 और simply return space 0. और ये स्टेटमेंट हम इसलिए लिखते हैं बिकॉज आपका प्रोग्राम कुछ फंक्शन तो परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई एडिशन कोई कैलकुलेशन तो परफॉर्म नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रिंट कर रहा है. ठीक है, अब इस प्रोग्राम में हम रिटर्न 0 इसलिए लिखेंगे ताकि कंपाइलर को ये पता चले कि योर प्रोग्राम हैज रन सक्सेसफुली एंड देयर आर नो एरर्स. तो ये क्रॉस चेक करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए कि देयर आर नो एरर्स, वी हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट एट द एंड बिकॉज द फंक्शन रिटर्न टाइप इज इंट. सो एट द इंक्लूड स्टेटमेंट आपको कौन सा लिखना है? रिटर्न 0 सम नंबर. ओके, इंटीजर नंबर यू आर रिटर्निंग.
It signifies that this program has run successfully without error. एंड रिमेंबर, अगर आप इंटीजर रिटर्न टाइप लिख रहे हैं तो आपको ये स्टेटमेंट इंक्लूड करना ही है ऑलमोस्ट इन एवरी प्रोग्राम, because if you are not going to include this statement, your program may run with errors. ठीक है, तो आपको ये जो स्टेटमेंट है, since the type is integer and at the end it returns the integer type of value, you must include this statement also, return 0. Okay, so जब भी आप प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करें इंट में, तो मैं चाहूंगी कि आप सबसे एंड में रिटर्न 0 स्टेटमेंट ऐड ही कर दो और उसके बाद आपकी बीच में की कोडिंग लिखो, so that you won't forget to write this statement at the end. Okay, so in every C++ program there has to be main function. In every C++ program, the main function has the return type as int, that is integer, and your integer main function have to end with the return 0 statement, which will tell that this program has no errors. Okay, let's move on towards the next statement. क्या है next statement आपके प्रोग्राम में? ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रेसेस है, राइट? उसमें अंदर जो आपने कोडिंग लिखा है वो क्या है? सी आउट हेलो वर्ल्ड. नाउ व्हाट इज सी आउट? सो ये एक आउटपुट स्टेटमेंट है जिससे एक लाइन प्रिंट होगी स्क्रीन के ऊपर. तो क्योंकि मुझे हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट करना है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, स्टूडेंट्स जस्ट स्टार्ट मार्किंग योर अटेंडेंस. मे बी द क्वेश्चन हैज स्टॉप्ड. आगे क्वेश्चन अटेंडेंस का. नो, रीलोड करो, रीलोड स्क्रीन रीलोड करो अपना. नहीं है क्या? ठीक है, आ जाएगा थोड़ी देर में. आ जाएगा. हाँ ठीक है, ठीक है. ओके, सो वी विल जस्ट लुक एट दिस लास्ट स्टेटमेंट. हाँ, ऑपरेटर का देख लेते हैं. अगर नहीं भी वो अटेंडेंस, तो यू डोंट हैव टू वरी, आई विल पोस्ट इट जस्ट. इसके बाद जो आपके 10 मिनट है वो ब्रेक में आपको मैं पोस्ट कर दूंगी क्वेश्चन, तो आप फटाफट अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना. लेट्स लुक एट दिस आउटपुट ऑपरेटर. सो आउटपुट ऑपरेटर actually combination of the output stream object and insertion operator. ठीक है, actually it is the combination of output object cout and this symbol. You can see here this symbol. ये आपको symbol दिखाई दे रहा है, less than. ओके, तो ये चीज और cout नाम का ऑब्जेक्ट, इसका कॉम्बिनेशन है ये दोनों मिला के एक लाइन प्रिंट करता है. How to print that line? You just have to write the name of that standard output stream object. इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? सी आउट लेस देन ये ऑपरेटर है, ठीक है, इंसर्शन ऑपरेटर. और यहाँ आप डबल कोट्स के अंदर आपको जो प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर उतना कंटेंट लिखे. ओके, डबल कोट्स क्लोज होने के बाद अब आ गया होगा क्वेश्चन, एंड देन यू हैव टू पुट द सेमीकोलन एट द एंड. अटेंडेंस मार्क करो, इधर कान मेरी तरफ होना चाहिए. देन व्हाट आई हैव डन हियर, मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना था तो मैंने डबल कोट के इनसाइड यहाँ हेलो वर्ल्ड लिख दिया, एंड देन आई हैव एंडेड द स्टेटमेंट विद सेमीकोलन. नाउ दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड विद द कोडिंग पार्ट इन योर प्रोग्राम. आपके पूरे प्रोग्राम में अगर आप देखोगे
तो जो विजिबल या कोड है आपके प्रोग्राम का, एक्चुअल कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो वो ये स्टेटमेंट है जो यूजर के साथ डील करेगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज सी आउट? तो ये आपको प्लीज लिसन केयरफुली, व्हाट इज सी आउट? सी आउट इज अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट which represents standard output stream in C++। अब स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करना, इसका मतलब आउटपुट डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करना। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं कंप्यूटर में? आउटपुट डिवाइस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर। इस केस में हम मॉनिटर यूज कर रहे हैं, यानी स्क्रीन। ठीक है, सो सी आउट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रिप्रेजेंट करता है आउटपुट डिवाइसेस को, जिन्हें हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। यानी कि आपके इस ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो भी कंटेंट है वो इस ऑब्जेक्ट को असाइन होगा और वो कंटेंट उस स्क्रीन पे फॉरवर्ड होगा, यानी कि डिस्प्ले होगा ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो सी आउट जो है इसे हमें फिर से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फाइल जो नेम स्पेस है आपकी एसटीडी नाम की उसमें डिफाइंड है, और इसको हमने ऑलरेडी इसकी जो डिक्लेरेशन पार्ट है वो उसकी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल में है, तो वो भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल विद दिस डायग्राम। इज इट विजिबल टू यू? सी, ये है आपका सी आउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपने यहाँ डबल कोट्स में जो भी कंटेंट लिखा है, ये एरो देखिए, इधर जा रहा है एरो, तो ये जो भी वेरिएबल की वैल्यू है ये इस इंसर्शन ऑपरेटर की हेल्प से इस ऑब्जेक्ट में होती है असाइन, और फिर ये ऑब्जेक्ट इसको फॉरवर्ड करता है उसके जो रिप्रेजेंट कर रहा है या जिस एक्चुअल डिवाइस से वो कनेक्टेड है और रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, connected means not physically, yeah? It is assigned some value। Okay, so that output stream devices, they are being represented with the help of this object। Okay, so this object represent them। Okay, so this will be forwarded here। तो ये जो C++ है ये डायरेक्टली आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखेगा। so this is how this two things, that is सी आउट ऑब्जेक्ट और ये जो सिंबल दिख रहा है दैट इज इंसर्शन ऑपरेटर, और इसका दूसरा नाम है पुट टू ऑपरेटर। ओके, पुट टू। सो सी आउट एंड दिस ऑपरेटर, दिस बोथ helps you to print anything on your output devices। so here you can see that आपके स्क्रीन पे ये जो है ये सिंबल राइट हैंड साइड में सी आउट ऑब्जेक्ट, ये ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो चीज है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आउटपुट डिवाइस में डिस्प्ले होगी। ठीक है, सिमिलरली देयर इज, टाइम है हमारे पास, so similarly there is input operator also। what is the use of input operator? see, your output operator is something like printf in your C। आपका जो प्रिंटफ स्टेटमेंट था ना, फैमिलियर प्रिंटफ स्टेटमेंट, जिसको आपने सी लैंग्वेजेस में कुछ भी प्रिंट करने के लिए यूज किया, कैसे लिखते थे आप प्रिंटफ स्टेटमेंट? प्रिंटफ ब्रैकेट में लाइन लिखो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अगर आपका स्टैंडर्ड इसका स्टेटमेंट होता, ये कैसे होता? ये आपका सी का स्टेटमेंट, ये था ऐसे, डबल कोट ऐसे लिखो, ब्रैकेट दो, हेलो, इसके बाद सेमीकोलन। ये था आपका सी का स्टेटमेंट। ये कैसे है यहाँ पे? सी आउट ऑपरेटर लेस देन डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन। ठीक है, तो जो आपका जॉब प्रिंटफ करता था वही जॉब यहाँ पे सी आउट करेगा। ठीक है, बस डिफरेंस ये है कि प्रिंटफ यहाँ एक फंक्शन था, सी आउट यहाँ एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और रही बात इनपुट ऑपरेटर की, तो जो जॉब स्कैनफ फंक्शन आपके लिए सी लैंग्वेज में करता था वो जॉब यहाँ पे सी इन करेगा सी प्लस प्लस में। स्कैनफ का स्टेटमेंट कैसे था आपका? स्कैनफ स्टेटमेंट यहाँ पे आप लिखते थे स्कैनफ, अगर स्कैनफ इसलिए रहता है टू गेट द वैल्यू फ्रॉम यूजर। अगर आपको यूजर से कुछ वैल्यू लेनी है इनपुट, तो सपोज हम अज्यूम करते हैं कि हमें कुछ टाइप की वैल्यू लेनी है, तो हम वो ए में ये ये था आपका सी का स्टेटमेंट, राइट।
स्कैनफ क्या करता है? स्कैनफ यूजर से वैल्यू लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए यूज होता है प्रोग्राम में। तो इस लाइन का मीनिंग ये है कि ए में वैल्यू असाइन जो होनी है वो यूजर से लो, ठीक है, और वो एंटर होगी कीबोर्ड के थ्रू और फिर वो ए वेरिएबल को असाइन होंगी। हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि आपका ए वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, इससे मैंने परसेंट दी, ठीक है। अब इस केस में क्या है बट, तो स्कैनर का जो जॉब है वही यहाँ पे इनपुट ऑपरेटर का जॉब है, दैट इज सी इन। सी इन नंबर वन स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि ये स्टेटमेंट वेट करेगा फॉर द प्रोग्रामर टू इनपुट सम वैल्यू फॉर दिस वेरिएबल नंबर वन and it will be stored into the number one. Now see here, C in it comes along with this operator. अब ये ऑपरेटर कैसा है? ग्रेटर देन ग्रेटर देन। सी आउट के केस में कैसा था? लेस देन लेस देन। ओके, इट इज प्रोनाउंस्ड एज सी इन। इट इज अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम इन सी प्लस प्लस। अब स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं सी प्लस प्लस में? या तो कीबोर्ड, या तो स्कैनर, राइट, या फिर माउस। यहाँ हम यूज कर रहे हैं कीबोर्ड, सी। ये जो ऑपरेटर है ना, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन और गेट फ्रॉम ऑपरेटर। सो विद द यूज ऑफ दिस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, whatever on the right hand side, okay, whatever comes from the left hand side, देखिए आप यहाँ पे कीबोर्ड से कुछ वैल्यू एंटर करेंगे, वो वैल्यू कौन रीड करेगा? ऑब्जेक्ट। नाउ दिस ऑब्जेक्ट विल असाइन द वैल्यू, assign this value which is entered by the user to the variable on its right hand side. तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो वैल्यू असाइन का काम हो रहा है ना, ये हो रहा है इसके हेल्प से, और वैल्यू जो रीड करने का काम हो रहा है कीबोर्ड से, वो हो रहा है इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से, सी इन। और वैल्यू असाइन कौन करेगा उस वेरिएबल को? तो ये ऑपरेटर, दैट इज नोन एज एक्सट्रैक्शन। ये इसका दूसरा नाम है गेट फ्रॉम ऑपरेटर। तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और सी इन, ये दोनों मिलके इनपुट लेने का काम करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, ठीक है। तो जो इनपुट ऑपरेशन होता है पूरा, दैट इज यूजिंग सी इन एंड दिस ऑपरेटर। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? कीबोर्ड से एक वैल्यू यूजर कोई एंटर करेगा इस वेरिएबल के लिए, और जो भी वैल्यू वो एंटर करेगा उस वेरिएबल में जाके असाइन हो जाएंगे। मतलब 45.5, जैसे उसने वेरिएबल के यहाँ सपोज n1 के लिए आपने वैल्यू पूछी थी, तो सपोज मैंने कीबोर्ड से एंटर किया 45.5, तो वो वैल्यू n1 इज इक्वल टू 45.5 ऐसे असाइन हो जाएगी। तो जहां कहीं मेमोरी में उसके लिए स्पेस बनी है, वहां ये वैल्यू स्टोर होंगी उस मेमोरी पे, एड्रेस पे, ठीक है, n1 के। So this is the meaning of input and output operator. So that was the basic, the most basic program जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारी ही चीजें कवर की। आप देख सकते हो कमेंट लाइन, नॉन एग्जीक्यूटेबल पोर्शन इन द प्रोग्राम, हेडर फाइल which includes the declaration of the identifier like cout and cin, namespace which includes the definitions of the standard input output stream objects, and main function which has to be written inside every C++ program which has the default return type as integer. ये यहाँ एक ही स्टेटमेंट यूज किया है प्रोग्राम में cout का, जो प्रिंट कर रहा है hello world line, where cout is standard output stream object. This is the insertion operator. Return statement, this I have to write because I have given the, or we have to write the integer as the return type of the main, and hence we must include the statement at the end, return 0, so that it will signify that the program has run successfully. End of the brace, run the program, and you will see the output simply hello world. Okay, so now you may leave the mute. अभी किसी को कुछ डाउट है तो वो रुक के पूछे, और बाकी के यू may leave the mute. अटेंडेंस आ गई सबको? ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट है तो वहां यहाँ पर रुक के पूछो, और बाकी के यू may leave the mute.